मैं जानता हूं कि उनकी पार्टी के पास धन शक्ति बहुत है। उनके पास प्रचार मंत्री हैं। प्रचार मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, जो आज प्रধানमंत्री ज्यादातर प्रचार मंत्री बने दिखते हैं। না আসানসোলটা আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি বলতে পারি কি আবার এই আমার থার্ড হোম। ফার্স্ট হোম হচ্ছে পাটনা, সেকেন্ড হোম হচ্ছে আমাদের मुंबई और आसनसोल हो गया हमारा थर्ड होम। सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे पहले किसी का नाम अनाउंस हुआ था तो मेरा नाम अनाउंस हुआ था और ममता जी ने खुद किया था। मैं योगा करने वाला आदमी हूँ, मैं शांत रस का आदमी हूँ। अदरवाइज तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ जिसमें किसी किस्म के एरोगेंस की बू या एरोगेंस की खुशबू है। वो तो पब्लिक फैसला करेगी। নমস্কার, আপনারা দেখছেন দৃষ্টিভঙ্গি। আমি মধুরিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আর আজকের মধুরিমা এবংয়ে আমি চলে এসেছি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবার যিনি, অর্থাৎ তারকা শত্রুঘ্ন সিনহা, তার সঙ্গে আজকে আলাপচারিতা চলবে। নমস্কার। এবং পুরো শহর জুড়ে এত তাপপ্রবাহ চলছে, হিট এতটা বেশি, তার মধ্যে আসানসোলে আপনি প্রার্থী, কেমন আছেন আগে বলুন। আমি ভালোই আছি, চলছে, ভালো করে চলছে। এখানে এখানে অনেক দিন হয়ে গেছে। আর না, আসানসোল তো আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি বলতে পারি কি আবার এই আমার থার্ড হোম। ফার্স্ট হোম হচ্ছে পাটনা, সেকেন্ড হোম হচ্ছে আমাদের মুম্বাই, আর আসানসোল হয়ে গেছে আমার থার্ড হোম। আমি কমফর্ট লেভেলটা ভেরি হাই। আপনি বললেন এখানে ভীষণ গরম আছে, সেটা আমাকে এখন ডিস্টার্ব করে না। আমি তো তার লাস্ট ইলেকশনে যেখানে এসেছিলাম এখানে, বাই গ্রেস অফ গড অ্যান্ড আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্রমিনেন্ট, পাওয়ারফুল, পপুলার লিডার মমতা ব্যানার্জি, আমরা একটু রেকর্ড ক্রিয়েট করলাম এইবারে এখানে আসানসোলে। এইবারে আমরা উইশ, হোপ অ্যান্ড প্রে, আর পসিবিলিটিজ আর ভেরি হাই দ্যাট এইবারেও আমরা একটু নতুন রেকর্ড ক্রিয়েট করতে পারবো। সো কমফর্ট লেভেল ইজ ভেরি হাই। বাই ইলেকশনে আপনি জয়ী হয়েছিলেন, তো এটা 24 সাল, তো এখন আরো বেশ কিছুটা সময় গেছে। এখানকার মানুষজনকে আপনাকে আরো বেশি করে আপন করে নিচ্ছেন? আপনি কি এই ভাইবটাই পাচ্ছেন এই গোটা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র ঘুরে? হ্যাঁ, একবারে সেইটা তো আমি বললাম, কমফর্ট লেভেলটা ভেরি হাই। আমি এইখানে প্রত্যেক মাস এখানে একবার না দুইবার, তিনবার, কইবার 4বার এসেছি এখানে। প্রত্যেক আপনাদের যে পুজো, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, ছট, এত ইম্পর্টেন্ট ছট আমাদের, তারপরে ঈদ, বকরিদ, ক্রিসমাস, সব সময় তো আমি এখানে থাকি, এখানে এসেছি। সো এর সঙ্গে আমার একদম সেই জন্য বললাম কি থার্ড হাউস হয়ে গেছে আমার এখন আসানসোল। আর সেই জন্যে আমি আগে বললাম যে আই এম সো গ্রেটফুল টু দ্য পিপল অফ আসানসোল অ্যান্ড বেঙ্গল দ্যাট আমার কমফর্ট লেভেলটা এত হাই হয়ে গেছে এখানে। একটা কথা খুব বলা হয়, এই আসানসোল বেল্টে অবাঙালির সংখ্যা কম্পারেটিভলি বেশি। সেটা কি কোথাও আপনার জন্য ফেসিলিটি, এটা কি আপনি মনে করেন? देखिए, बंगालीज यहाँ परिवार हमारा जो है वो बहुत करीब है हमारे, और बहुत ज्यादा है, और अच्छी बात है। साथ साथ हमारे जिन्हें आप लोग कहते हैं माइग्रेंट्स, या बहुत लोग कहते हैं कि बाहर के लोग हैं, ये तो संविधान तो इजाजत देता ही है कि आप कहीं के हुए हों, कहीं भी बच सकते हैं, जियो जीने दो के तहत कहीं भी आप आगे अपने को बढ़ा सकते हैं, समाज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आसनसोल में एक बहुत बढ़िया बोर्ड देखा हमने बिगिनिंग में, और आज तक मैं उसको प्रीच एंड प्रैक्टिस करता हूँ। আচ্ছা। उस बोर्ड पे লেখা ছিল এখানে, এখনো আছে বোধহয়, সিটি অফ ব্রাদারহুড। दिस इज एब्सोल्युटली a cosmopolitan area, রাইট। and it is city of brotherhood। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष के लोग, अलग अलग प्रदेशों से लोग खिंच कर चले आते हैं यहाँ पे और यहाँ बस गए हैं। तो ये अच्छी बात है। एंड हमें, लेकिन मैं अपने को कहूँगा बहुत फॉर्चुनेट हूँ, चूँकि बंगाली मेरी बहुत पुराना बंगाल से मेरा नाता है।
FTII में गया था तो पहले मैं बंगाल में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। 4 सेंटर था, दिल्ली, कलकत्ता, उस समय कलकत्ता था, फिर मुंबई था जो पहले बॉम्बे था, चेन्नई जो है आज वो कल मद्रास था। इन 4 सेंटर में से मैं कलकत्ता आया था और कोलकाता से हमारा सिलेक्शन हुआ था। और सिलेक्शन करने वाले भी लेट एंड ग्रेट, बहुत ही ज़बरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स वी एवर हैड, मृणाल दा थे, मृणाल सेन थे हमारे। तो बंगाल से बहुत पुराना हमारा संबंध है, बंगाल से पुराना रिश्ता है मेरा, बंगाल की संस्कृति से, बंगाल की सभ्यता, बंगाल की भाषा, उसको इतना प्यार करता हूँ मैं कि मेरा, अगर आप कहें तो सही मायने में कई बार लगता है खाने पीने के मामले में भी मेरा सबसे फेवरेट खाना कोई है तो वो बंगाली है, बंगाली खाना है बंगाल का। मतलब बहुत सारे हैं, माचे है, बेगुन भाजा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ट्रेडिशनल बंगाली फूड जो पहले हम लोग बचपन में खाते थे या खिलाया जा, अब तो करीब करीब ख़त्म हो रहा है। अगर नॉन वेज कभी खाया तो इलिश माछ, उसका बहुत शौक, रोहू, तो ये सब यहाँ के मिष्टी जो हैं, एंड वर्ल्ड फेमस है बंगाल की मिष्टी, सौंदेश तो खासकर, रसगुल्ला। तो ये इसको करेक्ट तरह से प्रोनाउंस करना भी यहीं के सभ्यता में सीखा हमने। तो इसलिए हमारा तो है कि बंगाली परिवार कहता हूँ, मेरा अपना परिवार है बंगाल परिवार, और साथ ही साथ हमारे अपने जो लोग हैं, चाहे हमारे अपने बिहार के हों कि झारखंड के हों कि उड़ीसा के हों कि मध्य प्रदेश के हों कि उत्तर प्रदेश के हों, या जहाँ हमारा जय महाराष्ट्र के लोग हों, सब लोग यहाँ हैं और सब ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और दिया। ओके अभी आते हैं कि 19 के बाद 24 आ गया है। ये जो आसनसोल है ये बोला जाता है कि इस स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब इस साल अगर फिर भी आपका जीत हो गया तो आपने क्या क्या प्लान सोच के रखा है, क्या करेंगे इस जगह के लिए? देखिए, हर चीज़ आदमी प्रायोरिटीज के हिसाब से करता है। जैसे पिछली बार शायद मैं बहुत कम ऐसे MPs में से होऊंगा पूरे देश में, और खासकर अपने बंगाल में, और विशेषकर बिल्कुल अपने आसनसोल में, कि जहां मैंने जितना काम किया उस काम को जब सेशन खत्म हो रहा था यानी एंड में, तो मैंने उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लोगों के सामने में प्रेस के जरिए पेश कर दिया। मेरा अपना मानना है कि ऑनेस्टी जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी ट्रांसपेरेंसी भी है। हमें हमेशा लगेगा कि जैसे आज तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा लाइफ में। 2 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, दोनों में या 5 बार का MP रहा हूँ, 6ठी बार चुनाव लड़ रहा हूँ और रेगुलर लगातार। तो आज तक कोई एलिगेशन जब मुझ पर नहीं लगा है तो ये एहसास जरूर होगा कि अब कोई भी ऐसा काम ना करूं जो मैं पहले ही तो मैं अपने लिए करूं, वो करूं जनता के लिए। जनता की अमानत है, जनता की अमानत जनता के इस्तेमाल में करूं, इस्तेमाल, और प्रायोरिटी वाइज करूं, प्राथमिकता वाइज करूं, और कुछ भी ऐसा ना करूं कि अब इस स्टेज में, इस एज में, इस फेज में किसी तरह का हम पे कोई आरोप लगे। ना सिर्फ आरोप लगे और इल्जाम लगे, बल्कि लोगों को फख्र हो, लोगों को गर्व हो कि देखो फिर से इन्होंने हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे हैं और सारा काम ढंग से किया है। तो वो आपने जो कहा, ये बातें जो हैं प्रायोरिटी से करनी पड़ेंगी। बहुत सारी बातें दिमाग में हैं, कहाँ तक इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर पाएंगे, किन किन इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर पाए, प्राथमिकता के आधार पे। ये कोल फील्ड में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इनके पेंशन का, इनके सहूलियतों का, इनका जो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, आज बेरोजगारी देश में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा दुनिया में भी कह सकता हूँ, और यहाँ पर 50-60 सालों में, 70 सालों में, या कहूँ आज़ादी के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई थी, जितनी महंगाई कभी नहीं हुई थी जितनी बेरोजगारी अभी है भारतवर्ष में और हमारे बंगाल में भी। हालांकि ममता जी की बहुत अच्छी नीयत और कोशिश के बावजूद जो है वो तो मानना पड़ेगा। तो कोशिश, अभी बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे कोयला फील्ड में ही भी, अब ईसीएल की बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख से ज्यादा आदमी थे, काम कर रहे थे। अभी 11 फील्ड्स को इन्होंने करीब करीब प्राइवेटाइज कर दिया, और पे भी शायद नजर लगी हुई होगी। तो अब उसमें जरा इनको भी सोचना होगा और हमें भी कुछ करना होगा कि उसमें से 1/3 फोर्स कम हो गया है। यानी जहाँ 1.5 लाख लोग थे वो 50,000 के आसपास हो गए, 50,000। তাহলে আমরা কি করব? আমরা করব, নিশ্চয়ই করব কিছু, কিন্তু প্রায়োরিটি ওয়াইজ করব। আগে একটা এই প্রায়োরিটিতে কি রানীগঞ্জ আছে কোথাও? কারণ রানীগঞ্জ তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের মধ্যে হ্যাঁ পড়ে, হ্যাঁ আছে তো। এবং আপনি যে প্ল্যানগুলো বলছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, डेफिनेटली আছে। রানীগঞ্জ ইজ এ বিউটিফুল প্লেস। আমি তো আমরা हमें तो आतो बार जाइए एखाने, जितना उनका डिमांड आया, मांग आया, वो हमने करने की कोशिश की है और आगे भी करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अपने ही फंड से और अपने ही जरिए नहीं, बल्कि थ्रू आवर लीडरशिप ऑल्सो, यहाँ पे मिलके और कलेक्टिव एफर्ट से हम सेंटर को भी परसुएट करेंगे और करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो हो रहा है ये सही नहीं है, इसको सही करना है, इसको ठीक करना है। यहाँ पे आपका कंपटीटर है सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया। कंपटीटर के बारे में क्या ख्याल है? बहुत जबरदस्त कंपटीटर लग रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? क्या लग रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, और मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं योगा करने वाला आदमी हूँ, शांत रस का आदमी हूँ, अदरवाइज तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ जिसमें किसी किस्म के एरोगेंस की बू या एरोगेंस की खुशबू है। वो तो पब्लिक फैसला करेगी। जहाँ तक अहलुवालिया जी का सवाल है, अहलुवालिया जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कई बार हम कलीग्स भी रह चुके हैं। हालांकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे कभी, लेकिन 1-2 बार मिनिस्टर रहे हैं वो, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, और वो हमें अच्छे इंसान दिखते हैं वो। और मैं ऐसे भी इस पार्टी में या किसी इलेक्शन में किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत करने नहीं आया हूँ। मुझे कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उनकी विचारधारा से, अपनी विचारधारा को आगे लेके चलना है, और सिद्धांतों में बात होती है, इश्यूज पे बात होती है, क्योंकि इस वक्त मामला दोस्त का नहीं है, इस वक्त मामला देश का है, और मैं देश हित में बात करना चाहूँगा। जहाँ तक अहलुवालिया जी का सवाल है, उनसे बहुत लोग पूछना चाहेंगे कि भाई आप दार्जिलिंग में थे, दार्जिलिंग से आप क्यों आखिरी मोमेंट में आपको वहाँ से एक ही बार के बाद आप क्यों आ गए ये दुर्गापुर से क्यों यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था, नहीं उतारा, लास्ट मोमेंट में आपको क्यों लाया गया, जबकि आप पिछली बार दुर्गापुर से ये स्क्रैप थ्रू किया था आपने, को 2000 के करीब वोटों से पार्लियामेंट में जीते थे आप। उसके बाद से आपको जो लाखों से जीता है इंसान यहाँ पे रिकॉर्ड कायम करते हुए आसनसोल में, उसके खिलाफ क्यों लाया गया आपको? कहीं आपको इसलिए तो नहीं लाया गया कि बहरहाल आप जो कह किसो चलो मुझे सपोर्ट करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? या उनको लाया गया है किसी और कारण से कि वहाँ जवाब देते नहीं बनेगा कि हमने दार्जिलिंग में इसके पहले क्या किया, दार्जिलिंग में आपका बुकलेट कहाँ है, जिस बुकलेट में आपने छापा है, बताया है लोगों को, प्रेस को, कि हमने ये किया है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी वाला बुकलेट जो हमने दिया दुर्गापुर में या अपने आसनसोल में हमारे। उसके बाद दुर्गापुर का कहाँ है, क्या किया, वो ट्रैक रिकॉर्ड जरूर पूछना चाहेगी जनता और जानना चाहेगी। उसके बाद मैं जानता हूँ कि उनकी पार्टी के पास धन शक्ति बहुत है, उनके पास प्रचार मंत्री हैं, प्रचार मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री ज्यादातर प्रचार मंत्री बने दिखते हैं, तो प्रचार मंत्री भी हैं उनके पास पैसा तंत्र जो है बहुत भारी है। लेकिन ये भी आसनसोल की जनता सक्षम है बताने में, और खासकर हमारे बंगाल के लोग, कि हाँ ममता जी का नेतृत्व है, ममता जी की लीडरशिप है। अगर उनके पास धन शक्ति बहुत है तो ममता जी या हम लोगों के पास जनशक्ति बहुत है। और ये भी मानकर चलिए, कितना भी धन शक्ति क्यों ना हो,
जनशक्ति के सामने कभी टिक नहीं सकता है। जनशक्ति हमेशा धन शक्ति पे भारी पड़ता है। तो इसलिए अभी जो है बाकी बातें जो हैं वो आसनसोल की जनता और बंगाल के लोग और हमारे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो जादू है वो ठीक कर देगा। ममता दीदी के बात कर रहे हैं आप, तो उनसे आपको कोई टिप्स मिला इस इलेक्शन के बारे में? जैसे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ बोला? नहीं, वो उनको पता है, मुझको उनका अफेक्शन मिलता है, मुझे मानती हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि शी इज़ बिन वेरी काइंड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सपोर्टिव। यहाँ तक कि आपको तो शायद पता होगा कि सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे पहले किसी का नाम अनाउंस हुआ था तो मेरा नाम अनाउंस हुआ था, और ममता जी ने खुद किया था। और उन्होंने कहा था कि बाकी 42 सीटों का फैसला तो बाद में होगा, एक सीट का। हाँ, एक सीट का फैसला है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो है शत्रुघ्न सिन्हा जी का और आसनसोल का। तो आसनसोल भी इस मामले में आगे है, मुझे भी आगे रखा उन्होंने। तो उनको पता है कि हम पार्टी लाइन से अलग नहीं जाएंगे, और उनका मेरे शुरू से उनको पता है कि मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए आई कॉल ए स्पेड, और मैं पोलाइट ज़रूर दिखता हूँ कई बार, लेकिन फर्म भी साथ साथ रहता हूँ। पोलाइट एंड फर्म पॉलिसी मैंने हमेशा ये किया। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अगर कहेंगी तो मैं ज़रूर मानूंगा उनको। लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग आपको बोहिरागत बोलते हैं उन लोगों को क्या आप सिर्फ खामोश बोलना चाहेंगे? नहीं, वो उसके पहले थोड़ा समझाना भी चाहूंगा। जो हमें बाहरी कहते हैं, हाँ। जो हमें बाहरी कहते हैं, कहते थे, अब तो शायद नहीं कहते हैं, उनको दो चार चीज समझाना चाहूंगा। और वो ये कि अगर आप देखें, फिर जैसे मैंने शुरू में कहा, संविधान जो है वो आपको इजाज़त देता है, किसी जगह जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं बच सकते हैं, कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। आपने इसके पहले भी देखा है कि इंदिरा गांधी, लेट एंड ग्रेट इंदिरा गांधी, चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी थी। आपने देखा था हमारी फ्रेंड और सुषमा स्वराज, जो बहुत लेडी सब्सटेंस थी, वो बेलारी से चुनाव लड़ी थी। प्रणब बाबू एक बार बड़ोदरा से चुनाव लड़े थे। आपने देखा था भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एक बार बंगाल से आके चुनाव जीत कर गए थे, नागपुर के बाद। उसी तरह से आपने देखा है मधु लिमे को, आपने जॉर्ज फर्नांडिस को, इन लोगों को कितनी बार, शरद यादव को, इन लोगों को आप देखा है कि सब बिहार से, मुजफ्फरपुर से, जगह जगह से चुनाव लड़के जीते हैं लोग आए। आपने इतनी दूर की बात ना जाए तो उससे पहले नहीं, थोड़ी नज़दीक की बात कर लें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो तो गुजरात के होके वाराणसी से आके, काशी से आके, वाराणसी से आके चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और वो भी नहीं एक नहीं, डबल सीट पे सेफ प्ले करके जीतते हैं। वडोदरा से भी लड़ते हैं और उसके बाद वाराणसी से भी लड़ते हैं। अभी वाराणसी में टिके हुए हैं, आगे टिकेंगे नहीं टिकेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये जो है, अगर ये तमाम लोग बाहरी हैं या बाहरी नहीं हैं, तो आपका बिहारी बाबू बाहरी कैसे हो सकता है? बिहारी बाबू आज बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी है, और सही मायनों में हिंदुस्तानी बाबू है। इसलिए जो लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, वही कहना चाहूँगा जो आपने इशारा किया, उनको एक ही लफ्ज़ है कहने के लिए, काफ़ी है, खामोश। থ্যাংক ইউ সো মাচ वक्त देने के लिए। থ্যাংক ইউ, নাইস অফ। শত্রুঘ্ন সিনহা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আগামী দিনের জন্য তার জন্য অনেক শুভেচ্ছা থাকছে আমাদের তরফ থেকে। তবে ভোট বাক্সের ফলাফল 4 জুন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আজকের মতন মধুরিমা এবং এ পর্যন্তই। আপনারা দেখছিলেন দৃষ্টিভঙ্গির ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল। আমার সঙ্গে ছিলেন ক্যামেরায় রবিউল ইসলাম।